لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تھا غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، غریبوں کا کوئی غم گسار نہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز کیا ہے۔ میں بہت دیر تک آج آپ کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں رکھنا چاہوں گا، جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی محفل واعظ جاری ہے، حضور کی محفل جاری ہے، اس میں ایک آواز گونجتی ہے، مسجد نبوی ہے، ستاروں کی طرح میرے آقا کو گھیر کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت جلوگر ہے۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ گفتگو نہیں کرتے تھے، جب بھی میرے آقا کو پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ انداز دیکھیں، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں، اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور کی محفل واعظ رک گئی، آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے۔ اس وقت جب متوجہ ہوئے میرے آقا کریم، جب سب صحابہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے تجھے کام کیا ہے مجھ سے؟ اس عورت نے کہا یہاں آئیے تو بتاؤں گی، یہاں آئیے تو بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، رحمت تمام، رحمت للعالمین، رحمت عالمیان اپنے صحابہ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس عورت کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے اس نے بے باکی دکھائی، ایسا کوئی عورت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے بے باکی دکھائی۔ اس نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے دل میں خلجان نہ رہے، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عورت پاگل تھی، وہ پاگل تھی۔ اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا، اللہ اکبر، جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا، جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی، اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی۔ اس کی بات بے سر و پیر کی تھی، اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا، لیکن قربان جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے، جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا، حضور گوش کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی۔ صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے، اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے۔ وہ بولتی رہی، وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے، جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے سرد پڑ گئے، سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے۔ اللہ اکبر، اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کوئی تیری
बात पूरे मदीने मुनव्वरा में न सुना करे, जब कोई तेरी बात न सुना करे उस वक्त तू मेरे पास आया कर और मुझे अपना हाले दिल सुनाया कर। मैं तेरी बात सुनने के लिए हाजिर हूँ। वो तो चली गई। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, वो पागल थी पागल, और वो बकवास करती रहती है, उसकी कोई नहीं सुनता है। आपको इतनी देर तक उसने मुशक्कत में खड़े रखा। मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबा को किस तरह तसल्ली दी, फरमाया जैसे मैं तुम्हारे लिए हूँ उसके लिए भी तो हूँ, उसकी कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो वो हाल इसको सुनाएगी जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उसका सुनने वाला आमिना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीबों के साथ ये अंदाज मुस्तफा जाने रहमत का था। ये सीरत पाक का अक्स जमील सैयदना गरीब नवाज की जिंदगी में आप देखें। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में आप देखें। सरकार गरीब नवाज सिर्फ तकरीरों से तबलीग नहीं होती, सिर्फ कॉन्फ्रेंसों से इस्लाम नहीं फैलता, सिर्फ सेमिनारों में फिक्र अंगेज और दर्दनाक गुफ्तगू करने से काम नहीं होता, बल्कि हमें कुछ इंसानियत भी दरकार होती है, कुछ गरीबों का ख्याल भी दरकार होता है। हमारे पास तो जो आता है, मैं परेशान हूं, अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर दे, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। कभी मैदान अमल में भी कदम रखो। मुसलमान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है तो आपने किया क्या है? और गुर्बत की चक्की में पिस रहा है तो आपने किया क्या है? मुसलमान जिहालत की वादी में भटक रहा है तो आपने किया क्या है? तब सिरे इनकलाब नहीं बपा करते, मैदान अमल में आना हो, जोहदे मुसलसल दरकार होती। एक गरीब किसान मेरे गरीब नवाज के पास आया और वो गरीब किसान कहने लगा, सरकार बादशाह के कारिंदों ने मेरी जमीन पे टैक्स ज्यादा लगा दिया, मैं गरीब भर नहीं सकता, मैं गरीब भर नहीं सकता। और सुना है कि हमारा जो बादशाह दिल्ली में रहता है वो आपके मुरीद का मुरीद है, अगर आप सिफारिश कर दें मेरा काम हो जाए। किसान था वो। किसान की आवाज किसके कानों में जाती है? कौन सुनता है किसानों की? किसानों की फरियाद पे कौन लब्बैक कहता है? किसानों की ये इज्जत किसके समझ में आती है? सोचो तो सही। किसान तो बेऔकत है लोगों की निगाह में, किसानों की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन गरीब नवाज 825 साल पहले कितना गरीब रहा होगा वो किसान। आया है गरीब नवाज के यहाँ। गरीब नवाज कहते छोड़ यार, मैं तो यहाँ नमाज रोजे की बात करने आया हूँ, आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की बात करना मेरा तरीका है। ये मैं बादशाह से सिफारिश करूं और तेरा टैक्स कम कराऊं, ये मेरा काम नहीं है। ये आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की बात इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता। इस्लाम ये कहता है पहले आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर के हकायक की बात करो, इसलिए कि आसमान के ऊपर की बारी बाद में है, जमीन के नीचे की बारी बाद में है। पहले जमीन के ऊपर की बात करो, इसलिए कि जो जमीन के ऊपर का माहौल संवार दे, जमीन के अंदर का माहौल खुद ब खुद संवर जाएगा। पहले ऊपर संवारो। कुरान ने भी कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया। इस्लाम पहले दुनिया की बात करता है। नहीं हम अल्लाह वाले लोग हैं, हम तो किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते, अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनका जिक्र हो रहा है, जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ता है। किसान आ रहा है गरीब नवाज के पास। मैं सोचता हूं आज आप मेरी बात सुनकर आप भी सोचेंगे कि गरीब नवाज आज अगर जमीन के अंदर की बजाय जमीन के ऊपर होते और शायद माहौल कुछ और होता, माहौल कुछ और होता। ख्वाजा का हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज, रूहानियत का ताजदार, दिलों पे हुकूमत करने वाला। याद रखना, सरों पे हुकूमत करने वाला हाकिम नहीं होता, दिलों पे हुकूमत करने वाला हाकिम होता है। हाँ, इसलिए कि
सर तो चटियल पहाड़ों की तरह होते हैं, बादशाह का तख्त पहाड़ नहीं बना करते, बादशाह का तख्त तो अल्लाह अकबर बिल्कुल सिडोल, बिल्कुल मुरब्बा नुमा, बिल्कुल बिछी हुई चटाई की तरह तख्त होते हैं। कुदरत ने दिल के फर्श को मिसले तख्त बनाकर बताया है। इसके लिए भी कुछ हाकिम होंगे, और वो कौन है? जो अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी उल्फत से, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से, अपने खूबसूरत लबो लहजे से जो दिलों पे हुकूमत करे, वो असल हाकिम है। सरों पे हुकूमत करने वाला, सर तो कोई भी झुकाता है, डंडों से भी सर झुक जाता है। सर झुकाना अहम नहीं है, दिल झुकाना अहम। और इस्लाम सर बाद में झुकाने की बात करता है, इस्लाम पहले दिल झुकाने की बात करता है। इसलिए कि सर तो तलवारों से भी झुक जाते हैं, लेकिन दिल सिर्फ अखलाक से झुका करते हैं, दिल सिर्फ किरदार से झुका करते हैं। किसान आकर गरीब नवाज से कहता है, हुजूर कोई सिफारिश कर दीजिए। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं खुद तेरे साथ दिल्ली तक चलूंगा। गरीब नवाज उस किसान से कहते हैं, ये 850 साल पहले की बात है, इसका आप ज़हन में तसव्वुर रखिएगा और इसको आप ख्याल रखिएगा, सुनने वाले मौजूदीन भी और गायबीन भी, कि ये बात 850 साल पहले की है कि सरकार गरीब नवाज के पास किसान आया अजमेर मुकद्दस में कि बादशाह के कारिंदों ने जुल्म किया किसान पर। गरीब नवाज से कहा सिफारिश कर दे, फरमाया मैं खुद चलूंगा, कोई लेटर नहीं दिया जाएगा, कोई खत नहीं दिया जाएगा, कोई कागज का टुकड़ा लिखकर नहीं दिया जाएगा, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। और हिंद की तारीख, अखंड भारत की तारीख गवाह है कि एक गरीब किसान के लिए मेरे ख्वाजा अजमेर मुकद्दस से दिल्ली तक का सफर उसके साथ करते हैं। जब दिल्ली पहुंचे उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी। बादशाह को खबर लगी तो बादशाह अपनी फौज के साथ गरीब नवाज के इस्तकबाल के लिए आया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो पीरो मुर्शिद थे बादशाह के, वो भी साथ तशरीफ लाए और आने के बाद दोनों ने कदम पकड़ लिए। सरकार आप बगैर इत्तला के आ गए? इत्तला तो दी होती, इत्तला दी होती तो इंतजाम किया जाता आपके शायान शान। फरमाया मेरा काम था इसलिए आ गया। जब काम अपना होता है तो इसी तरह आया जाता है, इत्तलाएं नहीं की जाती। हुजूर आपका क्या काम? आपने हमें नवाजा, आपने हमें अता किया, जो सब रानाइयां हैं, जो सब ऐश इशरत है, सब आपकी दुआओं की बरकत है। हुकूमत आपकी दुआओं की बरकत, सल्तनत आपकी दुआओं की बरकत, नाजो नम आपकी दुआओं की बरकत, सब तो आपकी दुआओं की बरकत से है। आपको क्या काम आ गया? तो गरीब नवाज ने फरमाया ये किसान है, आपके कारिंदों ने इस पर टैक्स इसकी ताकत से ज्यादा लगा दिया है, तो मैं आ गया हूं कि इसकी सिफारिश लेकर के कि इसको कम करो या माफ कर दो। किसान पे जुल्म मत करो, किसान पे जुल्म मत करो, इसलिए कि जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं होती। हर जालिम को उसके जुल्म का मजा चखाया जाता है। बादशाह ने कहा हुजूर माफ कर दे, मुझे पता नहीं था ये कारिंदों की, सिपाहियों की या वहां के लोगों की नाकारगी की वजह से हुआ है, लेकिन हुजूर ये टैक्स तो माफ किया जाएगा, मसला हल कर दिया जाएगा क्योंकि आप तशरीफ लाए हैं। आपने क्यों तकलीफ की? आप खत देते तो भी काम होता, खत की भी जरूरत नहीं थी, इसको भेज देते अपना नाम लेकर के, आपका नाम भी आके बोलता तो भी काम हो जाता। गरीब नवाज फरमाते हैं मुझे भी पता था कि मेरे नाम से भी इसका काम हो जाता, लेकिन इसके साथ चलकर कदम ब कदम इसलिए आया हूं कि इसका काम तो यूं भी हो जाता, लेकिन हर कदम पर जो इस गरीब को खुशी मिल रही थी वो खुशी कहां मिलती? और मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है जो किसी का दिल खुश कर दे अल्लाह भी उससे खुश हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो किसी की मदद के लिए, जरूरतमंद की मदद के लिए उसके साथ चलता है, सुनो, जो किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उसके साथ चलता है, हर कदम पर
اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.